لاہور محمد سجاد سے نیو اسٹار لیبر یونین لاہور کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبہ بھر میں ورکروں پر آئے 300 روپے ٹیکس فوری طور پر معاف کیے جائیں تاکہ محنت کش طبقے کو ریلیف مل سکے۔ یونین رہنما کے مطابق مہنگائی کے باعث مزدور طبقہ شدید مالی دباؤ کا شکار ہے اور اضافی ٹیکسز ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ورکروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ٹیکس میں ریلیف دیا جائے اور سفری سہولیات یا خصوصی ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی فراہم کیا جائے تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔ شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے بیورو چیف محمد اشفاق مغل کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد امن مذاکرات میں پیش رفت اور پاکستان کی سفارتی کوشش لائق تحسین ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات نہ صرف خطے بلکہ پورے دنیا کے امن کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے لیے اعزازی ہے کہ وہ عالمی سطح پر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان عالمی امن کے لیے اہم کردار ادا کرنے پر پوری طرح سنجیدہ ہے اور مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے کیے گئے حالیہ اقدامات انتہائی لائق تحسین ہیں۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے مرکزی جامع مسجد گول فیصل آباد میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک سعودی دوستی خطے کے استحکام کے لیے مستحسن اقدام ہے جن کا مخلصانہ کوششوں اور تعاون سے عمل کو مزید تقویت ملی ہے۔ سعودی عرب، ترکی، قطر، دیگر دوست ممالک کی مشاورت اور تعاون پاکستان کے عالمی امن مشن کو مزید معتبر بنا رہے ہیں۔ آج پوری قوم دعا گو ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کامیاب ہوں گے، جنگ بندی مستقل امن میں تبدیل ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس عظیم مقصد کے لیے ذریعہ بنائے اور یہ کوشش نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی بلکہ پوری دنیا اور بالخصوص اس خطے میں خوشحالی اور اہل فلسطین کے لیے امن کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ پاکستان نے، ریاست پاکستان نے عالمی سطح پر کردار ادا کیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کروائی، بہت ہی مثبت مذاکرات ہوئے۔ اس کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف سعودی عرب اور آرمی چیف ایران میں گئے، وزیر اعظم قطر میں گئے، ترکی میں گئے، سعودی عرب میں گئے اور الحمدللہ اس ہفتے آنے والے ایام میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہو رہی ہے اور معاہدہ ہو رہا ہے، اور اس پر آج کے اس عظیم اجتماع میں ریاست پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو، حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فیصل آباد کی عوام کی طرف سے، مرکزی علماء کونسل کے علماء کی طرف سے، فیصل آباد کے شہریوں کی طرف سے، فیصل آباد کی عوام کی طرف سے، اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے پاکستان کے وقار کو دنیا بھر میں بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہو چکا ہے، وقار میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک سعودی دفاعی معاہدہ ہمارا الحمدللہ آگے بڑھ چکا ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس معاہدے کی وجہ سے افواج پاکستان پہلے سعودی عرب کے دفاع کے لیے وہاں افواج کو وہاں پہنچایا، اور اس ہفتے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دے دیا کہ ہماری افواج حرمین کے دفاع کے لیے بھی سعودی عرب میں پہنچ چکی ہے۔ تو لہذا آج کے اس عظیم اجتماع میں جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے اس پر حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آئندہ ہفتے جو ہونے والے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو، خلیج میں امن ہو، پاکستان کے اندر استحکام آئے، اور ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں، نیک تمنائیں بھی ریاست کے لیے رکھتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ جو اس وقت عالم اسلام کی توقعات پاکستان کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں، اللہ ہمیں اس میں سرخرو فرما دے۔ خبر شامل کہتے ہیں فیصل آباد سے بیورو چیف محمد اشفاق مغل کی رپورٹ کے مطابق سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی سرسبز نیشنل کبڈی چیمپئن شپ 2026 میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر ایس پی مدینہ ڈویژن اسامہ امین، ایس ایچ او منصور آباد، سب انسپیکٹر توقیر اختر، دیگر افسران بھی ہمراہ موجود تھے۔ سی پی او نے کھلاڑیوں سے مصافحہ کیا اور روایتی کھیل کے فروغ کے لیے ان کے جذبے کو سراہا۔ کبڈی ہمارا روایتی کھیل اور پنجاب کی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ نوجوانوں کو منفی سرگرمی سے بچانے کے لیے کھیلوں کے میدان آباد کرنا ضروری ہے۔ سی پی او نے اسٹیڈیم میں سیکیورٹی کے
सख्त इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, बारबेक्यू, मर्दार मुर्गियों का खाने से बच गए 1600 किलो से ज़ायद मुर्दा मुर्गियाँ सप्लाई करने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल का फौरी एक्शन। मुखबर के इत्तला पर अस्कराबाद टीम को टॉस सौंप दिया गया। अरब एएसआई ने टीम के हमरा जवामर्दी से नाकाबंदी की पेट्रोलिंग पुलिस की मशकूक गाड़ी को रोक लिया है। गाड़ी से 1600 किलो से ज़ायद मुर्दा मुर्गियाँ बरामद हुई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। 2 मुलजमान गिरफ्तार रिकॉर्ड पेश ना कर सके। मुर्दा मुर्गियों को मौके पर तलब कर दिया गया। दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर दिया गया है। शहरियों को मुअज़्ज़ज़ गोश्त से बचाने के लिए बरवक्त कार्रवाई की। शहरियों की जान माल से खिलवाड़ करने वालों के गिरद घेरा तंग कर देंगे। फैसलाबाद से नसीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राना शबीर के साहबजादी की शादी की पुरवकार और पुरतकल्लुफ़ तकरीब मुकामी निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। दुल्हन राना हमजा, राना तकीर और राना उमैर की हमशीरा है। शादी की इस खुशी के मौका पर अहले खाना, अजीज़ व क़ारिब और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में इलाका भर के मुमताज़ सियासी, समाजी, कारोबारी और मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और राना शबीर के इनके ख़ानदान को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर राना रहमत, राना ज़ुबैर और राना हमजा समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ीन भी शरीक हुए और खुशी के इस मौके को खूब सराहा। बेहतरीन इंतज़ामात और पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया था, जिसे शुरका ने खूब सराहा। तकरीब खुशगवार और पुरमसरत माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुई, जहाँ मेहमानों ने दूल्हा दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और इनकी नई जिंदगी के लिए दुआ की। शामिल करते हैं शेखपुरा से ब्यूरो चीफ बशारत अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक एमपीए हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं और इनके हक में दुआ गो हैं। फ़लस्तीन में इसराइल की जारियत, फ़िज़ाई हमले, यहूदी बस्तियों के तोसीफ़, फ़लस्तीनियों के बेदखली और बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस की पामाली मसलसल जारी है। तवील मुद्दती पायदार सियासी अमल में सबसे बड़ी रुकावट मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की तरफ से आबादकारी के इक़दामात हैं, जो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। हज़ारों निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली मज़ालिम की भेंट चढ़ चुके हैं, मगर मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम ने हिम्मत नहीं हारी और सरों पर कफन बांधकर इसराइली मज़ालिम का डटकर सामना कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों का इसराइली मज़ालिम का सामना करना आलम इस्लाम के लिए वाज़िया पैगाम है। सियालकोट रेस्क्यू 122 के ज़ेरे निगरानी फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पांस की जामिया फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। इंजीनियर नवीद इकबाल, तौसीफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 122 ने सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की ज़ेरे क़यादत इंसिडेंट कमांड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पांस की जामिया फर्जी मशकों का इनेकाद किया। इन मशकों का मकसद अवामी मकामात पर हंगामी हालात से मौसर अंदाज में निपटने और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाना था। इन फर्जी मशकों के जरिए किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से कबल इदारों की तैयारी, बरवक्त रद्द-ए-अमल और बाहमी राबताकारी को जांचा गया, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में इंसानी जानों के नुकसान को कम से कम किया जा सके। इस इक़दाम का मकसद माजी में पेश आने वाले अफसोसनाक सानिहात से सबक हासिल करते हुए बेहतर पेश की इक़दामात को यकीनी बनाना है। दौरान मशक आग लगने की सूरत में महफूज इनकला को यकीनी बनाने, बुलंद बाला इमारतों और बुलंदी पर फंसने अफराद को बचाना, डूबने वालों की लाश की तलाश और सैलाबी सूरत हाल में लोगों को रेस्क्यू करना। रेस्क्यूअर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कीमती जानों को बचाकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करके अस्पताल मुंतकिल के मुजाहरा पेश किया। मज़ीद बराह मुख्तलिफ मुतल्लिक़ा इदारों दरमियान बाहमी कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन और रिस्पांस टाइम का भी तफसीली जायज़ा लिया गया, ताकि किसी भी हकीकी इमरजेंसी की सूरत में बेहतर और मौसर हिकमत अमली अपनाई जा सके। इंसिडेंट कमांड पोस्ट का क़याम अमल में लाया गया। मश्क में रेस्क्यू स्काउट ने भी डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू वार्डन जमील जंजुआ की ज़ेरे क़यादत हिस्सा लिया। इसके अलावा सोशल वेलफेयर इदारा, NGOs और ज़िले इदारों को भी शामिल किया गया। सखर से रिपोर्ट रहमतुल्लाह बरूड़ की खबर के मुताबिक नवाब अली वसान की भुट्टो चांडियो आमद, खालदा रोबिना चांडियो के कत्ल पर लवाकिन से ताज़ियत, मुलज़मान की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला खैरपुर के सदर साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाब अली वसान चंद रोज़ कबल बेदर्दी से कत्ल होने वाले खालदा रोबिना चांडियो के गाँव भुट्टो चांडियो पहुँचे, जहाँ उन्होंने मरहुमा के लवाकिन से ताज़ियत की और गहरे दुख अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर नवाब अली वसान ने कहा कि यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। ताहम मुलज़मान की गिरफ्तारी एक मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि कानून के मुताबिक मुलज़मान को सख्त सज़ा दी जाएगी, ताकि मरहुमा के ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि वाक़ई में मुलव्वस तमाम अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर पुलिस की जानिब से किसी किस्म की रिश्वत लेने की शिकायत सामने आई है तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवाब अली वसान ने कहा कि कब्र कुशाई, नमाज़ जनाजा और तदफीन के तमाम मराहिल शरीयत और कानून के मुताबिक दुरुस्त तरीके से होने चाहिए। इस मौके पर नवाब अली वसान ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, SSP खैरपुर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट खैरपुर से रब्ता किया है और मामले की तफसीलात आगाह करते हुए फौरी एक्शन लेने की हिदायत की है। उन्होंने मुतासा खानदान को यकीन दिलाया कि वो इस मुश्किल घड़ी में इनके साथ खड़े हैं और इंसाफ की फराहमी तक हर मुमकिन आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नाला खुर्द के नवाही गांव में टाइगर फुटबॉल क्लब के ज़ेरे तमाम आल पंजाब फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया।
शबूर फुटबॉल क्लब के टीम ने फाइनल मैच जीत लिया। रनाला खुर्द के नवाही गांव 5 बनीएल में टाइगर फुटबॉल क्लब के ज़ेर तमाम आल पंजाब फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें पंजाब भर से 32 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच शबूर फुटबॉल क्लब और मुमताज़ शहीद फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया है, जो एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद शबूर फुटबॉल क्लब ने अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के दौरान रोजाना सैकड़ों शायकीन ने मैचेस देखकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। फाइनल मैच में राना ताहिर इकबाल और प्रेस क्लब के मेंबरान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर राना ताहिर इकबाल का कहना था कि इस तरह के खेलों के इवेंट्स नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने और इलाके में खेलों के फ़रोग़ के लिए निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। तनवीर चौधरी, रनाला खुर्द। खबर शामिल कहते हैं डेस्का से मोहम्मद शुएब मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद दाऊद शाह बुखारी पॉलिटिकल सेक्रेटरी, वज़ीर बल्दियात और सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद अफजल मंशा सिटी सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आज दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। पाकिस्तान सुलह और तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दे रहा है। जंग व जदल और इंतशार की खुलकर मुखालफत करते हुए पाकिस्तान अमन का दाई बनकर दुनिया के सामने आया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने फास्ट मीडिया ग्रुप के नुमाइंदा मोहम्मद शुएब मलिक से गुफ्तगू करते हुए कहा। भारत से जंग में कामयाबी के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से जो पजीराई पाकिस्तान को मिली है, इसे उठाने की पोजीशन में पाकिस्तान आ गया है। ईरान अमेरिका जंग बंदी में सालिस का मरकजी किरदार अदा करके पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर दुनिया को दिखाया कि अमन का रास्ता बातचीत और सालसी से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की भरपूर कोशिशों से तीसरी आलमी जंग रुक गई है। मोहम्मद अफजल मंशा सिटी सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि पंजाब भर की तरह तहसील दस्का और गुरुद्वारा की देहात में वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफ़ीक तरक्याती कामों के जाल बिछा देंगे। हुकूमत की अवलीन तरजीह अवाम को बुनियादी सहूलियात देता है। मसाइल हल के लिए खुद हम वक्त अपने हल्के का दौरा करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सियालकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें सियासत न्यूज़। खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में गर्मी का आगाज होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग 15 घंटों से तजावज़ कर गई। शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बदतरीन बहरान ने सर उठा लिया। खानका डोगरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिया 15 घंटे से तजावज़ कर गया है। शदीद गर्मी और हब्स से शहरी निढाल हो गए हैं। रात भर मच्छरों की यलगार ने नींद हराम कर दी है। बच्चे, बूढ़े और मरीज सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में भी बढ़ा दी हैं। तवील लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद गर्मी का सामना है, जबकि रात के औकात में मच्छरों की बहुतात से सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। बिजली की अदम दस्तियाबी से घरेलू और कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं। तलबा के इम्तहानात की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतल्लिका काम से लोड शेडिंग के खात्मे और शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया है।